Come on.
کشیدہ نہیں ہوگا، تیرا جو کرم فاتنہ زہرا نہیں ہوگا، قرآن نہیں خانہ کعبہ نہیں ہوگا، قرآن نہیں خانہ کعبہ نہیں ہوگا، تارا جو تیرے لال کا سجدہ نہیں ہوگا۔ شبیر سے وعدہ یہ کیا بنت علی نے، شبیر سے وعدہ یہ کیا بنت علی نے، زینب کا کوئی کام ادھورا نہیں ہوگا۔ اصغر نے الٹ کر کہا میدان ہنسی سے، اصغر نے الٹ کر کہا میدان ہنسی سے، تم سمجھے تھے بے شیر سے حملہ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے شریروں کو نبی گھیر کے رکھیں، بہتر ہے شریروں کو نبی گھیر کے رکھیں، گر اٹھ گئے پہلو سے تو اچھا نہیں ہوگا۔ نانا سے نواسے نے کہا دیں گے پسر ہم، نانا سے نواسے نے کہا دیں گے پسر ہم، نانا کبھی شبیر سے نانا نہیں ہوگا۔ بر محمد والے محمد بلند تر سلامات۔ دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، دشمن حق ریسرچ کرتے ہیں، لاکھوں اسکالر سرچ کرتے ہیں، اپنے ڈیڈی کو ڈھونڈنے کے لیے روز گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ یہ بات زمانے میں بہت عام ہوتی ہے، یہ بات زمانے میں بہت عام ہوتی ہے، زندگی جوانی میں تو نیلام ہوتی ہے، یہ تین تو پہلے سے ہی بدنام تھے، منی تو بعد میں آ کر بدنام ہوئی ہے۔ ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے، ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے، جہاں میں آج بیوٹیفل اجالا ہے، اور نتیجے دیکھیے بولے امام اثر کا یہ جناب شیخ کا منہ بحث سے بھی کالا ہے۔ بر محمد والے محمد بلند تر سلامات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بمنکر فضائلہم بمنکر مسائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات۔ نبی کی حدیث ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ۔ نبی کی حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو پھر یہ بات طے ہو گئی، جہاں علی کا ذکر ہوگا وہیں زینت ہوگی، اور جہاں علی کا ذکر نہیں ہے وہاں زینت بھی نہیں۔ جب یزید کا دربار تھا، جناب زینب کے خطبے سے ایک خطبے سے دربار منقلب ہو گیا تھا، وہ یزید سے زینبی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت لوگوں نے جو یزید کے دربار میں سپاہی تھے، انہوں نے مولا سجاد سے کہا آئیے مولا آپ منبر پہ آ جائیے۔ اسی منبر سے جسے یزید منبر کہتا تھا، اسی منبر سے ایک شخص مولا علی کو گالی دے کر نام کی توہین کر کے اترا تھا، اتر گیا وہاں سے۔ اب مولا سجاد سے کہا مولا آپ آئیے اس منبر پہ آ جائیے۔
मौला ने एक उस मिंबर को देखा, कहा किस पे? इस लकड़ी के ढांचे पर चढ़ जाऊं? कहा इस लकड़ी के ढांचे पर चढ़ जाऊं जहाँ से मेरे दादा अली की तौहीन की जाए। तो पता चला जहाँ से अहले बैत की तौहीन की जाए वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढांचा होता है। और जहाँ से अहले बैत के फजाइल पढ़े जाए, पालान रखे हो, तो भी मिंबर होता है। अल्लाह फरमा रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कह रहा है हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा किया है तो इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। इनकी खिदमत का मकसद है इबादत। इबादत बहुत सी तरह की होती है। नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, बहुत तरह की इबादतें हैं। अल्लाह ने किसी इबादत के लिए ये नहीं कहा कि बस इतनी देर तक इबादत करनी है। अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें खल्क़ किया और खिदमत का मकसद क्या है कि तुम हमारी इबादत करो। और नबी ने फरमाया है ज़िक्र अलीयुन इबादत। नबी ने कहा अली का जिक्र इबादत है। अल्लाह ने खल्क़ किया है इबादत के लिए, इंसान को खल्क़ किया इबादत के लिए। अब इंसान को चाहिए वो अपनी जिंदगी ऐसे बनाए कि उसका बैठना इबादत बन जाए, चलना इबादत बन जाए, बोलना इबादत बन जाए, मोहब्बत उनसे करे जिन पर दुरूद भेजना इबादत बन जाए, नफरत उनसे करे जिन पर लानत भेजना इबादत। अल्लाह ने खल्क़ किया है इबादत के लिए। ज़बान दी है तो उसे ज़िक्र अली करो, कान दिए हैं तो उसे ज़िक्र अली सुनो। मन की जागीर पे मेरे कान का पहरा कर दे, मन की जागीर पे मेरे कान का पहरा कर दे, गहरे इरफाने बिला को और भी गहरा कर दे। तूने दी है ना ये अली बोलने वाली जबान, जो अली सुन नहीं सकते उन्हें बहरा कर दे। नबी ने फरमाया अली का जिक्र इबादत है। और ये भी है कि नबी अली का जिक्र नबी का जिक्र और नबी का जिक्र है अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र है इबादत। मौला अली का जिक्र इबादत है। और ये भी कि मौला अली का चेहरा देखना इबादत है, ये भी नबी ने कहा। एक शख्स आया मौला के पास, कहने लगा या अली, नबी ने कहा है कि आपके चेहरे को देखना इबादत, देखना इबादत। मौला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये शर्फ मुझे बख्शा है। उसने एक सवाल फंसा दिया लाके, उसने कहा या अली, अगर ये बात है कि आपके चेहरे को देखना इबादत है, अल्लाह इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, इसके अलावा किसी और की इबादत ही नहीं है। एक सलवात पढ़ लें। कहा कि इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, और अल्लाह तो कह रहे हैं कि वो वहदहु ला शरीक है, उसके साथ में कोई शरीक नहीं, उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं। और नबी कह रहे हैं कि आपके चेहरे को देखना इबादत है, अल्लाह कह रहे हैं उसकी जात में इबादत नहीं, आप तो इससे उसकी इबादत में शरीक हो गए। ऐसा सवाल उसने कर दिया, अब तौहीद खतरे में चली गई। ये हदीस नबी की ये भी मुस्तनद है, कुरान की आयत है। उसने इतना मुश्किल सवाल कर दिया। मौला मुस्कुराए। मौला ने फरमाया अगर चेहरा अली का है तो अली की इबादत है, और अगर चेहरा ही अल्लाह का है तो अल्लाह की इबादत है। आवाज समाअत पर कभी बार नहीं होती, आवाज समाअत पर कभी बार नहीं होती, गुफ्तार उसकी कभी बेकार नहीं होती। करता है जो अल्लाह के चेहरे से मोहब्बत, उस शख्स के चेहरे पे फिटकार नहीं होती। 5 ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ देखना इबादत है। पहली, कुरान को देखना इबादत, दूसरे काबे को देखना इबादत, आलिम के चेहरे को देखना इबादत, और चौथी वालिदैन को देखना, चेहरे को देखना इबादत, और 5वीं अली का जिक्र करना, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये सारे बराबर हो गए? ये बराबर नहीं है। अब बंदा कहे काबा काबा काबा, तो सवाब नहीं है, इबादत नहीं है। बंदा कहे कुरान कुरान कुरान, इबादत नहीं है। बंदा कहे आलिम आलिम आलिम, इबादत नहीं। बंदा कहे वालिदैन वालिदैन, इबादत नहीं। अब बंदा कहे या अली या अली, तो ये इबादत है। ये हर लिहाज से इबादत है। या अली कहना, बंदा अगर या अली लिखे तो इबादत, अली सोचे तो इबादत, अली का जिक्र करे तो इबादत, ये हर तरह से इबादत है। छठे इमाम का फरमान है
कहना। मौला फरमा रहे एक मर्तबा या अली कहना 6 महीने के एहतिकाफ से अफजल है। और ये भी फरमाया छठे इमाम ने कि एक मर्तबा या अली कहने का जो सवाब है वो इतना है, बंदा अगर खुलूस से कहे एक मर्तबा या अली, उसका सवाब ऐसा है कि इमाम फरमा रहे हैं कि उनके 16,000 खत्मुल कुरान बिस्मिल्लाह से लेके बन्नास के सीन तक 16,000 मर्तबा का खत्म किया हुआ कुरान इमाम का उस बंदे के नामा अमाल में लिखा जाएगा जो एक मर्तबा कहेगा या अली। जनाबे बहरोल अली अली बहुत करते थे, इतना अली अली करते थे, उस वक्त का जो बादशाह था चिढ़ने लग गया, कहने लगा बहरोल एक सवाल का जवाब दे, मुझे इतना पास कितनी मर्तबा आया। जनाबे बहरोल ने फरमाया तू ये बता नबी के पास कितनी मर्तबा आया। उसने कहा नबी के पास आया है 24,000 मर्तबा। नबी के पास 24,000 मर्तबा आया। बहरोल ने कहा अच्छा नबी के पास 24,000 मर्तबा तो अली के पास 48,000 मर्तबा। गुस्सा आ गया, तलवार निकाल ली, गर्दन पे रख दी, दलील दे वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। जनाबे बहरोल ने कहा इतनी जल्दी क्या हो गई, सबर कर, दलील दे रहा हूँ, मुझे बस इतना बता अगर बंदा शहर में एक मर्तबा जाता है तो दरवाजे पे कितनी मर्तबा आता है। एक मर्तबा शहर में जाएगा तो दरवाजे पे 2 मर्तबा आएगा। तूने नहीं सुना नबी ने क्या कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। एक सलवात पढ़ दें। बड़ाए खुशनुदी मौलाए कायनात बुलंदतर सलावत। अली के नाम का चर्चा बहुत है, अली के नाम का चर्चा बहुत है, हाँ मगर ये मुल्ला भी बहरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, हाँ मगर ये मुल्ला भी बहरा बहुत है। कर लो कभी इससे हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। करते थे बहुत, तो किसी ने वो भी जमाने में इतना अली अली करते कि किसी ने चढ़कर बोल दिया सलमान तुम इतना अली अली करते रहते हो, हर वक्त अली अली करते रहते हो, मगर इतना बताओ तुम्हें अली अली करने से फायदा हुआ। जनाब सलमान ने कहा अगर मुझे फायदा ना होता तो मैं क्यों अली अली करता। कहने लगा अच्छा सलमान, कब्रिस्तान लेकर आ गया, कहा तू बिना अली अली करता है, मुझे एक मुर्दा जिंदा करके दिखा दे। ले आया कब्रिस्तान, बड़ा चलाका आदमी था, उस सब के जो दौर की खबर थी उस खबर पे नहीं लाया, 20-30 साल पुरानी जो हो गई उस खबर पे ले आया, क्या सलमान इसे जिंदा करो। जनाब सलमान ने उस खबर पे ठोकर मारी, खबर खुली, अंदर से मुर्दा बाहर आया कि भागने इधर उधर भागने लगा, कहने लगा हल जबली हल जबली हल जबली, कहना मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। तो उसने कहा सलमान ये क्यों पूछ रहा है इसका ऊंट कहाँ है। जनाब सलमान ने फरमाया तूने नहीं सुना, जो जिस हालत में मरता है उसे उस हाल में उठाया जाता है, जो जिस हाल में मरता है उसे उस हाल में उठाया जाता है। इसका ऊंट इससे बिछड़ गया था, इसका ऊंट इससे गुम हो गया था, तो इसकी जबान पर इसका ऊंट रहा। अब इसे जब दोबारा उठाया गया तभी वापस अपने ऊंट को ढूंढने लगा। जनाब सलमान बताना यही चाह रहे हैं कि मैं इतना अली अली करता हूँ इस वजह से करता हूँ, एक न एक दिन मुझे भी मौत आनी है, मैं भी मरूंगा, जब अल्लाह मुझे उठाएगा लोग अपने भगोड़ों को ढूंढेंगे, मैं अपने मौला के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। और एक जनाब मीसा में तम्मार, वो भी अली अली बहुत करते थे, तो मौला ने उनसे कहा मीसा में तम्मार से, मीसा ये कूफा होगा, इधर इब्ने ज़ियाद की हुकूमत आ जाएगी और यहाँ इस तरफ एक दरख्त उग जाएगा जहाँ पर तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा,
जनाब मीसम ने कहा मौला मेरा जुर्म क्या होगा, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत में मारा जाएगा? फरमाया मीसम तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे और तुम्हारी जबान काट दी जाएगी और सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। अब आगे अबू इब्ने ज़ियाद की हुकूमत आ गई, गिरफ्तार कर लिया जनाब मीसम तम्मार को, दरबार में लेके आ गया। अब दरबार में गए तो उसने कहा इब्ने ज़ियाद ने जाओ इसके हाथ काट दो। जनाब मीसम ने कहा सही कहा था मेरे मौला ने कि मेरे हाथ काटे जाएंगे। कहा और क्या कहा था तुम्हारे मौला ने? कहा मेरे मौला ने कहा था इसके पैर काट दिए जाएंगे। अच्छा और क्या कहा था कि जबान काट दी जाएगी और ये कहा था कि सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। क्या अच्छा ये कहा था तुम्हारे मौला ने? अभी मैं तुम्हारे मौला की बात को झूठा साबित कर देता हूँ। सिपाहियों से कहा इसके हाथ काट दो, पैर काट दो, सूली पे चढ़ा दो, जबान ना काटना, जबान ना काटना, सब कुछ कर दो। अब वही कर दिया, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सूली पे चढ़ा दिया। जनाबे मीसम ने कहा मेरी भी ख्वाहिश है, जब तुम मुझे सजाए मौत दे रहा है तो एक मर्तबा कूफे वालों को या मदीना जो भी था उनको बुला लो, मुझे उनसे कुछ कहना है। उसने कहा चाहिए तो मैं मौत दे रहा हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश कर देता हूँ पूरी। सब कुछ जमा कर लिया। अब जनाबे मीसम तम्मार सूली पे हैं, हाथ पैर कट चुके। अब जनाबे सलमान ने विलायत पढ़ना शुरू की। जनाबे सलमान पढ़ना शुरू हुए, अली अली अली, विलायत बयान करना शुरू किया, अली अली करते रहे। उसके बाद अब जब शजरे बताना शुरू किए, अब एक एक का शजरा बताना शुरू किया। इब्ने ज़ियाद का सिपाही दौड़ता हुआ आया इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद तूने कहा था उसकी जबान ना काटना, वो तो सबके शजरे बता रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा फिर क्या किया, जबान तूने काटी के नहीं? काम तुझसे पूछना है कि काटे या नहीं। कहा जल्दी जाओ उसकी जबान काट के कहीं वो मेरा शजरा ना बता दे। आ गए इसके सिपाही जनाबे मीसम के पास जबान काटने। जनाबे मीसम ने कहा जाके इब्ने ज़ियाद से कह देना कि तुझमें जुर्रत ही नहीं है, तुझमें इतनी औकात है ही नहीं कि तू अली की बात को छुटला सके। मलंगों की ज़बां पे कभी ताले नहीं होते, मलंगों की ज़बां पे कभी ताले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वो दिल कभी काले नहीं होते। भरे दरबार में मीसम दुनिया को ये बतला गए, बातें से जो जुड़ जाए वो अली वाले नहीं होते। एक सलाम आज 5 मुहर्रम, आज मौला हुसैन के उस जवान का जिक्र किया जाता है मसाइल में कि जिनका लाशा मौला हुसैन से उठ ना सका। एक बहुत बड़े आलिम दीन इमाम हुसैन के रोजे में जनाबे अली अकबर की शहादत पढ़ रहे। जब शहादत पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचे ना, अकबर के सीने में पर्ची लगी। बाहर से एक बंदा आ गया, कहने लगा इसके आगे अब आप नहीं पढ़िएगा, इसके आगे ना पढ़िएगा। कहने लगे क्यों, क्या मैंने गलत पढ़ दिया? कहा आपने गलत नहीं पढ़ा, आपने जब ये कहा ना अकबर के सीने में पर्ची लगी, इमाम हुसैन का रोजा हिलने लग गया। अजरुकुम अल्लाह। आलिम दीन घर आ गए, घर पे सोए। रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आई। उठे, देखा कोई बीबी नजर नहीं आई, वापस बिस्तर पे आ गया। फिर किसी बीबी के रोने की आवाज आई, फिर देखा, फिर वापस लेट गए। जब तीसरी मर्तबा बीबी के रोने की आवाज आई ना, अब उनसे नाराज गया। कहने लगे ऐ बीबी आप कौन हैं और रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हैं? कहा कि मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ, मैं तुझसे इतना कहने आई हूँ आइंदा मेरे हुसैन के रोजे पे अकबर की शहादत ना पढ़ना, मेरे हुसैन से अकबर की शहादत बर्दाश्त नहीं होती। अजरुकुम अल्लाह। कहने लगा बीबी क्या मैंने गलत पढ़ दिया? कहा नहीं तूने गलत नहीं पढ़े, तू मसाइल पढ़कर तो चला गया, शहादत पढ़ के चला गया। हुसैन से गिरिया रुक नहीं रहा, हुसैन रोए जा रहे, नबी उन्हें रोक रहे, मौला अली रोक रहे, मगर मौला हुसैन नहीं रुक रहे। आ गई आशूर, सुबह का दिन हुआ। कहा अकबर अजान दो, और कहा अकबर ऐसी अजान दो कि मदीने में बहन सुगरा सुने, माँ अजान सुने, फूफियाँ अजान सुने। जनाबे अली अकबर ने अजान दी, अजान फजर दे दी, नमाज हुई, मक्तब का वक्त शुरू हो गया।
जब तनहा रह गए, कोई ना रहा, अली अकबर आए, बाबा अब तो मुझे इजाजत दे दे। क्या अकबर, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, अब जाओ उससे इजाजत ले लो जिसने आपको 18 साल पाला। आए अपने माँ के पास, कहने लगे अम्मा मुझे मौत की इजाजत चाहिए। वो वक्त क्या होगा जिस माँ ने 18 साल पाला हो, और वो ऐसा होता है कि अगर कोई बेटा किसी की माँ का कोई बेटा अगर घर देर से आए या ना आए तो माँ कई चक्कर दरवाजे पे लगा अब आ जाए। वो वक्त क्या होगा जब अली अकबर आए और अपनी माँ से कह रहे हैं अम्मा मुझे मौत की इजाजत दे दे। जनाब लैला के दिल को इस वक्त क्या गुजरी होगी? मना नहीं किया बीबी ने। बीबी ने इतना कहा अकबर आपके बगैर मैं जी नहीं सकती। जनाब अली अकबर समझ गए, कहने लगे अम्मा अगर कयामत वाले दिन गाजी ज़हरा ने सवाल पूछ लिया मेरा हुसैन तन्हा रह गया था, तूने अपने अकबर को बचा लिया, अम्मा क्या जवाब दोगी? कहा हाँ समझ गई मैं अकबर, आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अकबर इजाजत मिल गई इजाजत। अब जनाब अली अकबर जब खैमे से बाहर आने लगे ना, रावी कहता है कि खैमे का पर्दा कई मर्तबा उठता, कई मर्तबा गिर जाता, कई मर्तबा उठता, कई मर्तबा गिर जाता। आकर इमाम हुसैन के पास पूछा मौला ये खैमे का पर्दा कई मर्तबा उठता है, कई मर्तबा गिर जाता है, इसकी वजह जब भी अकबर खैमे से बाहर आना चाहते कभी माँ लिपट जाती है, कभी फूफी लिपट जाती है, कभी बहनें लिपट जाती है। जब जनाब अली अकबर खैमे के बाहर आए, अली अकबर खैमे के बाहर ऐसे आए जैसे भले घर से जनाजा जाता है। कहने लगे मौला हुसैन अकबर मेरा भी बड़ा दिल चाहता था कि मैं आपके सर पे अमामा बांधूं। अकबर जब थे आपकी फूफी ने आपके सर पे अमामा बांधा, आप जब बड़े हुए तो आपके सर पे आपकी माँ लैला ने अमामा बांधा। अकबर मेरा भी बड़ा दिल चाहता था कि कभी मैं भी आपके सर पे अमामा बांधूं। फरमाया बाबा आज आप मेरे सर पे अमामा बांध दीजिए। अली अकबर दो जानू होके बैठे, इमाम ने अली अकबर के अमामा बांधना शुरू किया। अमामा बांधते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमामा बांधते जा रहे हैं, इन्ना लिल्लाह कहते जा रहे हैं। सवार करा दिया, तैयार किया, सवार करा दिया। अली अकबर के बोसे लिए सवार करा दिया। चंद कदम घोड़ा आगे बढ़ा, आवाज दी अकबर वापस आ जाओ। वापस आए, फिर बोसा लिया, सीने से लगाया, फिर सवार किया, कई मर्तबा वापस बुलाया। अली अकबर आगे कहते हैं बाबा अगर आप नहीं भेजना चाहते तो मैं नहीं जा रहा। कहा अकबर अगर तेरा भी कोई जवान बेटा अकबर होता तुझे पता होगा जवान बेटे का दर्द क्या होता है। कहा जाइए अकबर जाइए। जनाब अली अकबर का घोड़ा चला, मौला हुसैन घोड़े के पीछे पीछे। जुलझले की रफ्तार तेज होती जा रही है, मौला हुसैन की रफ्तार जा रही है। एक बार ऐसा हुआ कि मौला हुसैन गिर गए, जुलझला तेज चलता गया। एक बीबी आई, कहा अब तो पीछे मुड़कर देखा कि इमाम हुसैन गिर गए हैं। अली अकबर आए, कहा बाबा आखिर क्यों रोक रहे? कहा अकबर चले जाओ अब नहीं रोकूंगा। बोसा दिया, फिर सीने से रखा अकबर तू मेरा जवान बेटा है ना, तू मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना, तू मुझे देखते रहना। मैदान में अली अकबर चले गए। अब जब प्यास की शिद्दत महसूस हुई जनाब अली अकबर को, प्यास की शिद्दत महसूस हुई, पलट कर वापस आए। कहा बाबा 2 घूंट अगर पानी के मिल जाए तो आप अली अकबर की जंग देखिएगा। मौला ने कहा अकबर अपनी जबान मेरी जबान में दे दो। अब जो जबान दी फौरन निकाल कर कहा बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा सूखी है। वापस मैदान में चले गए। अब हर तरफ से हमला होना शुरू हुआ। जालिम कहते हैं जितने बर्ची वाले हो सारे बर्ची वाले आगे आ जाओ। अब जब सारे बर्ची वाले आगे आ गए, मौला हुसैन ने दरे खैमा पे देखा किसी बीबी के पैर नजर आ रहे, समझ गए अकबर की माँ लैला होगी। कहा लैला मैंने नाना से सुना था कि माँ की दुआ बेटे के हक में पूरी होती है, जाओ अकबर के लिए दुआ मांगो। जनाब लैला ने मुसल्ला बिछाया, दुआ मांगी। ऐ इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, एक मर्तबा अकबर को उनके बाबा से मिला दे। अजरुकुम अल्लाह। जब हर तरफ से हमला हुआ, बर्चियों का वार हुआ। एक बर्ची जनाब अली अकबर के सीने में लगी। अली अकबर अब जीन पे ना रहे, जैसी जीन से गिरे ना
हर शहीद जो गिरा, किसी ने कहा मामू जान मदद को आइए, किसी ने कहा चाचा मदद को आइए, हर किसी ने मदद के लिए पुकारा। जब अली अकबर जीन से गिरे ना, कहा बाबा अलविदा, मदद के लिए ना आइएगा, क्योंकि अकबर जानते थे पूरा बाप है, जवान बेटे का लाशा नहीं उठा सकता। अली अकबर जीन से नीचे आ गए, मौला हुसैन की आंखों से नूर चला गया। मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पे इस तरह आए जैसे 6 महीने का बच्चा कोनियों के बल चल के जाता है। मौला हुसैन अली अकबर के लाशे पे आ रहे हैं, जालिम ठोकरें मार के हंस हंस के कह रहे हैं हुसैन हमने तेरे जवान को मार दिया, हमने तेरे अकबर को मार दिया। मौला हुसैन जब अली अकबर के लाशे पे आए, कहते हैं अकबर मुझे नजर नहीं आ रहे कहाँ हो। जब अली अकबर को सीने से कस के लगाया ना, जनाब अली अकबर की चीखें बुलंद हुई, जैसी चीखें बुलंद हुई, कहा अली अकबर क्या हुआ? कहा बाबा जालिम ने मेरी पर्ची मारी थी, पर्ची का फल तोड़ दिया था। कहने लगा बाबा, कहने लगा वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा बहुत साबिर है, आज जब अपने जवान बेटे के सीने से पर्ची निकालेंगे मैं भी देखूंगा कि हुसैन कितने साबिर है। अजरुकुम अल्लाह। जनाब अली अकबर के सीने से पर्ची निकालना शुरू की। कहा बाबा ऐसे पर्ची ना निकालिए, पहले दादा इब्राहिम को बुलाइए, दादा इस्माइल को बुलाइए, उन्हें बुलाइए। उन्होंने कुर्बान जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल आ गए। देखकर कहते हैं जब इमाम हुसैन पर्ची निकाल रहे थे, एक हाथ पर्ची पे रखा, एक हाथ जमीन पे रखा, ना आंखों पे पट्टी बांधी, ना अली अकबर के पट्टी बांधी। जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल कहते हैं हम और थे, हमने तो पट्टी बांधी थी, इनको देखो इन्होंने पट्टी नहीं बांधी। अब मौला हुसैन ने नाज़े अली पढ़ के अब जो पर्ची का फल खींचा, पर्ची नहीं आई, अकबर का कलेजा आ गया। मौला हुसैन ने फरमाया परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लो, मेरा जवान बेटा था। अजरुकुम अल्लाह। पर्ची निकाल ली, जनाब अली अकबर ने एड़ियों को रगड़ना शुरू किया, एड़ियों को रगड़ना शुरू किया। कहा अकबर कोई आखिरी वसीयत या ख्वाहिश हो तो बताओ। कहा बाबा अम्मा को मेरा सलाम कह दिएगा। आखिरी वसीयत क्या की? अम्मा को सलाम कह दिएगा। अब मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर के लाशा को उठाने की कोशिश की, लाशा उठ ना सका। खैबर नजफ की तरफ रुख करके कहा बाबा अली खैबर का दर्द 2 उंगलियों से उखाड़ना बड़ा आसान था, बाबा जवान बेटे का लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है। मौला हुसैन करबला से जितने भी जिनके लाशें लाए, किसी का लाशा ऐसे लेकर आए, किसी का लाशा ऐसे लेके आए। अली अकबर का लाशा मौला हुसैन अपनी पुष्ट पे लेकर आने लगे, लाशा उठाया नहीं गया। खैमे में लाशा लेकर आए, हर बीवी थी जनाबे लैला नहीं आई, कहा जनाबे फिजा से जाओ लैला को लेकर आ जाओ। जब जनाबे फिजा जनाबे लैला के खैमे में आई, देखा जनाबे लैला कभी दाएं तरफ गिर रही है, कभी बाएं तरफ गिर रही है, कह रही है कि मुझे खिदारे खैमा नजर नहीं आ रहा, कोई मुझे अकबर के लाशे पे ले जाओ। जनाबे फिजा अकबर के जनाबे अली अकबर के लाशे पे लाई, जनाबे अली अकबर के लाशे पे आके जनाबे लैला गिर गई और एक जुमला कहा मौला हुसैन से, मौला अगर कोई मन्नत हो तो मन्नत को क्या करना चाहिए? कहा मन्नत हो तो मन्नत पूरी करना वाजिब है। कहा आप लोग जरा खैमे से बाहर चले जाइए, मुझे अली अकबर से कुछ कहना है। सब खैमे से चले गए, अपने सर से चादर हटाई, अली अकबर के खून से अपने बालों को सुख किया, जमीन को जलजला आने लगा। मौला हुसैन कहने लगे लैला बददुआ ना करना। कहा मैं बददुआ नहीं कर रही, मैंने मन्नत ये मांगी थी कि अकबर के सर पे सेहरा बांधूंगी, अकबर की शादी कराऊंगी, अकबर का लाशा आ गया। अल्लाह मुशाक़तों
नौजवान की समझी जियाफतों में तुम साथ मौके होगे समझी जियाफतों में तुम साथ माँ करोगे बिगड़ा मगर मुकद्दर गर्दिश है आसमां की लैला ये कह रही थी मैयत नौजवान की गोरिया तुम्हारा लाशा यूं धूप में न होता प्रिया तुम्हारा लाशा यूं दुख में न होता होती जो सर पे चादर आफत नसीब मांगी लैला ये कह रही थी मैयत नौजवान की गुर्बत में आस छोड़ी तूने गरीब मांगी लैला ये कह रही थी मैयत नौजवान